Yes, ma'am. Okay. So interest on loan. See, from the following details, prepare profit and loss account of Yes Bank Limited for the year ended 31st March 2006. So on the topmost part of the page, you have to write Yes Bank Limited. Next line, it would be profit and loss account for the year ended 31st March 2006. You guys must have written it. Okay, now we will start with the schedules. Now rupees in lakhs. तो आपने क्या करना है, पीएनएल के यहाँ पर एक बार लिखना है रुपीज इन लैक्स, फिगर्स इन लैक्स, एंड देन शेड्यूल्स के ऊपर भी आप एक बार कॉमनली लिख दीजिए फिगर्स इन लैक्स, फिगर्स इन लैक्स. Okay, so shall we start? Yes. Okay, tell me interest on loan. Schedule number Schedule number 13 income. 13. Very good. Schedule number 13, interest earned. Write down interest on loan, outer column 25.90. Next, interest on fixed deposits. Interest Schedule on number 15. Very good. Schedule number 15, interest on fixed deposits. It is interest expended. I have to pay this interest to fixed deposit holders. 27.50 outer column. Next, commission. 14. Schedule number Yes. 14 Schedule number again. 14. Very good. Schedule number 14, commission. Commission. And the amount is 0.82. 0.82. You can say 0.82. Okay. Rebate, outer column, huh? Outer column. Rebate on bill discounting. 13. Schedule number 13. Schedule number, in- schedule number लेस होगा. लेस. कहाँ से लेस करेंगे, कहाँ से? 30 पैसे मैम. Discount on on bill bills discounted. वेरी गुड. शेड्यूल नंबर 13 में तो जाएगा, लेकिन लेस कहाँ से करेंगे? Discount on डिस्काउंट्स ऑन bill. बिल डिस्काउंटेड. वेरी गुड. सो आपको है ना नीचे आइटम दिया हुआ है, देखो सैलरीज के नीचे डिस्काउंट्स ऑन बिल डिस्काउंटेड, पहले ये लिखना पड़ेगा. लिखिए, शेड्यूल नंबर 13 में जाएंगे, लिखेंगे डिस्काउंट्स ऑन बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड. व्हाट इज द अमाउंट? 14.60. 14.6. Wait. What is the amount? You tell me first. 14.60. 60. And what is written in the bracket? Net. Net. What is written here in the bracket? Net. Net means already rebate is deducted from this amount. You don't have to deduct again. Are you guys listening to me? Yes. Yes, ma'am. So discount on bill discounted, अगर आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट, नेट मीन्स ऑलरेडी रिबेट डिडक्टेड है. क्योंकि ऑलरेडी डिडक्टेड है तो इसीलिए मुझे वापस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है. सो इट विल बी 14.60 आउटर कॉलम डायरेक्टली, एंड यू कैन राइट द वर्ड नेट. Net means already rebate is deducted. If you want, you can use these lines also in the bracket. Just for your understanding, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. In okay, rebate 4.90 you can leave it as it is. बैलेंस शीट बना रहे होते तो वो अलग बात है, अगर एडजस्टमेंट में होता तो हम शेड्यूल नंबर 5 में दिखाते, पर ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है. वैसे भी ये सिर्फ 13 में से लेस होगा और ऑलरेडी किया हुआ है लेस. सैलरीज एंड अलावेंसेस, ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग. Schedule number वेरी 16. गुड. शेड्यूल नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. उसमें लिखेंगे सैलरीज एंड अलावेंसेस. 5.40. That is the amount of salaries and allowances. 5.40 outer column. Next item, discount on bill discounted, already done. Interest on CC. Tell me. Schedule number 13. Schedule number 13. 13, interest earned, because CC is a type of loan, and when bank gives loan, they earn interest on CC. Okay, so it is interest earned, schedule number 13, outer column 22.30. 22.30.
Next, depreciation on bank's property. That means bank's property means fixed assets. 16. Yeah. 16. 16. Schedule number 16, operating expenses. 4. Outer column. Depreciation on bank's property. 4. It would be shown in outer column because adjustment और कोई नहीं है. Rent and taxes. ये कहाँ जाएगा? Schedule number Very good. operating Schedule number 16, 1.80. Outer column. Operating expenses. ठीक है. Next. Interest on OD. schedule number 13. Schedule number 13. Very good. Schedule number 13, because OD is also a type of loan and you earn interest on loans. So interest on OD is schedule number 13, outer column 15.40 if I'm not wrong. Is it 15.4? Yes, yes, yes. Okay, 15.4, outer column. Director's fees. 16. Schedule number 16. Schedule number 16, operating expenses, outer column 0.30. Audit fees. उधर ही Very Same. good. Operating expenses. Very good. Same place. Schedule number 16, operating expenses. आप लिखेंगे audit fees, outer column 0.40. 50. 0.50. Okay. Interest on saving deposits. 13. Schedule number 15. Interest 15. Interest expended. expended. Yes, it is expended. Interest expended. We have to pay interest to saving deposit holders. And therefore, it is my expense. Interest expenditures are shown in schedule number 15. Therefore, how you will show it? Interest on saving bank 6.80. account directly in the outer column 6.80. 6.80. Yes. Postage and telegram. तीनों Yes, schedule number 16. Postage तीनों भी and नीचे telegram, printing and stationery, sundry expenses. ये तीनों items हमने कहाँ दिखाने हैं? Schedule number 16. Operating expenses और तीनों के amounts भी 0.14, 0.29, 0.15. आपको तीनों के amounts के साथ दिखाने हैं. Directly outer column. अभी आ जाते हैं नीचे adjustment में. The bad debts to be written off amounted to rupees 3.80 lakhs. ये bad debts हैं जो write off हो गए हैं 3.80. कहाँ जाएगा बताएंगे? Operating expense. Very good. Operating expenses. Schedule number 16, outer column 3.80, bad debts. Bad debts 3.80, schedule number 16, outer column. Provision for taxes 35%. Okay. Transfer 20% to of profits to statutory reserves. अब देखो statutory reserve का 20% उन्होंने दिया हुआ है. तो वैसे 25% है, लेकिन if they are disclosing 20%, so we will do it as per 20%. Yes, ma'am. Okay, वो बोल रहे हैं 20 तो 20 से करने का. If nothing is disclosed, then it would be 25%. 25%. हाँ, क्योंकि वो तो अभी currently 25% ही हो रहा है ना. ठीक है, तो अगर नहीं दिया रहेगा तो 25, अगर दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है वो फॉलो करना है. फाइन. एक है प्रोविजन Yes, फॉर ma'am. टैक्स. हाँ, एक है प्रोविजन फॉर टैक्सेस 35%. वो अभी हमारा नेट प्रॉफिट ही नहीं आया है तो टैक्स कैसे निकालूं मैं. एक है आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व, वो भी नेट प्रॉफिट के ऊपर ही होता है करंट ईयर के. एंड प्रोवाइड 3 lakhs फॉर डिविडेंड. प्रोवाइड 3 lakhs फॉर डिविडेंड मतलब प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड. प्रोवाइड मीन्स रिजर्व करके रखो, जिसका मतलब होता है प्रपोज डिविडेंड. आवाज ठीक से सबको आ रही है? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो प्रपोज डिविडेंड की एंट्री क्या होती है? दो इफेक्ट्स होते हैं. एक पीएनएल में अप्रोप्रिएशन से लेस कर देते हैं. हाँ, अप्रोप्रिएशन से ही लेस करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज में मैं प्रोविजन फॉर टैक्स, आरडीडी ऐसे वाले आइटम्स दिखाऊंगी. ठीक है, प्रपोज डिविडेंड है तो नीचे अप्रोप्रिएशंस में से लेस होगा. याद रखो, अप्रोप्रिएशंस में से लेस होता है प्रपोज डिविडेंड. और सेकेंड इफेक्ट होता है डिविडेंड का करंट लायबिलिटी, मतलब शेड्यूल नंबर 5 बैलेंस शीट का.
वो तो अभी हम बना ही नहीं रहे हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है क्या इसने? नहीं। अगर नहीं, बोला 50. होता, अगर बोला होता तो हमने शेड्यूल नंबर 5 में प्रपोज डिविडेंड का सेकेंड इफेक्ट दिखाया होता। 50. अभी कहाँ दिखाएंगे? 15. 15 नहीं सुमन, प्रपोज डिविडेंड को अप्रोप्रिएशंस में से लेस करना है। मैं बता रही हूँ, आप कुछ मत करो, अभी मैं जो बोल रही हूँ उतना लिखिए। चलो अभी एक काम करेंगे हम, शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 चारों का टोटल कीजिए। आई एम गिविंग यू 2 minutes to get to the totals of all these 4 schedules. 2 minutes, please be fast. एक मिनट। शेड्यूल नंबर 13 का टोटल क्या है? 78.20. एक मिनट। हाँ जी, कितना है शेड्यूल नंबर 13 का टोटल? 78.20. 78.20, करेक्ट। शेड्यूल नंबर 14 का टोटल? 0.82. 0.82। शेड्यूल नंबर 15 का टोटल? 34.30. 34.30, करेक्ट। शेड्यूल नंबर 16 का टोटल? 16.38. 16.38। Now what you have to do is come in the main format. जहाँ पे आपने मेन फॉर्मेट बनाया है वहाँ पे आ जाइए। शेड्यूल नंबर 13 से लेकर 16 तक आप सबको इनर कॉलम में लिखिए, सबके टोटल्स को। शेड्यूल नंबर 13 के इनर कॉलम में आप लिख रहे हैं 78.20। शेड्यूल नंबर 14 के इनर कॉलम में आप लिख रहे हैं 0.80। आप दोनों को प्लस कीजिए, 78.20 प्लस 0.82 टोटल कितना होता है इनकम्स का? ये दोनों आपकी इनकम्स हैं, दोनों का टोटल कितना होता है? 78.20 प्लस 0.82 79.02। इसे आपको आउटर कॉलम में लिखना है टोटल के। आपने लिखा होगा वर्ड एक टोटल न्यू नेक्स्ट लाइन पे। Yes, ma'am. वहाँ आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 79.02। अब आपको शेड्यूल नंबर 15 के इनर कॉलम में लिखना है उसका टोटल, एंड दैट वाज 34.30। शेड्यूल नंबर 16 का टोटल था आपका 16.38, उससे भी आप इनर कॉलम में लिख दीजिए। एंड मुझे दोनों का टोटल करके, सॉरी दोनों नहीं, एक और आपने ना प्रोविजन फॉर टैक्सेस, रुकिए, अब आपने लिखा है प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज लिखा है आपने। शेड्यूल हाँ, नंबर मैम। 16 के नीचे लिखा है आपने प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज। Yes. हाँ, अब प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज में प्रोविजन फॉर टैक्स जाएगा ना, प्रोविजंस एंड हाँ। कॉन्टीजेंसीज में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जाएगा, लेकिन अभी वो पता नहीं है मुझे, आई डोंट नो द अमाउंट, सो हाउ विल आई कैलकुलेट? सी लुक हियर, हमको ना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट पहले कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे देखो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अमाउंट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, सो आप मुझे बताइए शेड्यूल टोटल इनकम्स कितनी है आपकी? टोटल इनकम्स कितनी है? 2 है ना टोटल? 79.0. 79.02 ना? ओके, 2. अच्छा, वैसे ही आपकी टोटल एक्सपेंसेस भी हैं, वो कितने हैं? 50.68. 50.68. हाँ, फिर से बताइए। 50.68. 50.68, हाँ, ये आपने क्या बताया मुझे? टोटल एक्सपेंसेस 2 का, तो अभी 3 टोटल एक्सपेंसेस है, पर आपने मुझे अभी तक शेड्यूल नंबर 15 एंड 16 का टोटल बताइए, वो मुझे लिखना नहीं है फेयर में, ये वर्किंग नोट में लेकर आना है। 50.68 मुझे यहाँ पे लेकर आना है वर्किंग नोट में। अब ये किसका किसका टोटल है? शेड्यूल नंबर 15 प्लस शेड्यूल नंबर 16, आपको चाहिए तो मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, शेड्यूल नंबर 15 प्लस शेड्यूल नंबर 16, ये 2 शेड्यूल्स का टोटल है।
वो शेड्यूल्स का टोटल है, शेड्यूल नंबर 15 प्लस शेड्यूल नंबर 16। तो आंसर है 50.68। इसको मुझे माइनस करना है। क्यों? इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस ही तो करोगे, तभी तो पता चलेगा प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए आपका प्रॉफिट कितना होगा। 28.34. 28.34. एक मिनट, हाँ जी, फिर से बताएंगे प्रॉफिट। 28.34. 28.34 ये आपका प्रॉफिट है। मैं नहीं कह रही हूँ ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है, नहीं, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट के बाद आप लेस करेंगे टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? 35%। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 35% ऑन 28.34 ब्रैकेट क्लोज। तो 28.34 का 35% कितना होता है? 9.92. 9.9. 9.9 क्या? 9.92. 2, ओके, 9.92। अब ये आप माइनस कर दीजिए, टैक्स को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? Net profit for the year. यस, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? $18.42. फिर से बताइए। 18.42। 18.42. 42. ओके ओके, तो ये हो गया आपका टैक्स का कैलकुलेशन और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर का कैलकुलेशन। अब आप मुझे बताइए, Yes. जो टैक्स मैंने निकाली है ना 9.92, ये कहाँ दिखानी है? ये दिखानी है आपको, आपने लिखा होगा मेन फॉर्मेट में। Contingent. हाँ, ये आपने लिखा होगा मेन फॉर्मेट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नीचे प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज। प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज के पास जगह आपके पास खाली होगी, उधर लिख दीजिए ब्रैकेट में प्रोविजन फॉर टैक्स, ब्रैकेट में प्रोविजन फॉर टैक्स, और इनर कॉलम में लिखेंगे 9.92। ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 9.92 लिखा। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो अब आपके पास इनर कॉलम में 3 अमाउंट्स हैं, शेड्यूल नंबर 15 का अमाउंट, शेड्यूल नंबर 16 एंड 9.92 प्रोविजन फॉर टैक्सेस का। तीनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लेके आएंगे। कितना है तीनों का टोटल, कितना आएगा? 60.6. वेरी गुड, 60.0. 60.60। 60.60 06 नहीं, 60.60। अब इस 60.60 को ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, मुझे माइनस करने हैं। किस में से? टोटल इनकम्स में से। टोटल इनकम्स कितनी है? 79.02। 79.02 माइनस 60.60। 18.42. 18.42. देखो इससे मैच होना चाहिए। देखो 18.42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ रहा है, मतलब करेक्ट है। अच्छा, ये फॉर द ईयर है, इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 18.42। कुछ लास्ट ईयर का प्रॉफिट है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट है क्वेश्चन में? ढूंढिए। नहीं है, तो सीधा लिखिए No, लेस ma'am. एप्रोप्रिएशंस, सीधा लिखेंगे लेस एप्रोप्रिएशंस। अब की बारी ये सब में 2 एप्रोप्रिएशंस हैं, एक स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और एक प्रपोज्ड Proposed dividend. यस। तो पहले दिखाएंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। लिखिए, लिखिए एप्रोप्रिएशंस के नीचे स्टैट्यूटरी ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ब्रैकेट बनाएंगे। अभी उन्होंने परसेंटेज खुद की दी हुई है, तो जो दी हुई है 20%. वो यस लिखिए। 20% ऑन क्या था? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था? 18.42। याद रखें हमेशा स्टैट्यूटरी रिजर्व नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर पे एप्लीकेबल होता है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 18.42। सो आप ब्रैकेट कैसे बनाएंगे? 20% ऑन 18.42। So what is statutory reserve? 3.68. 3.6. Inner column. Don't put it in the outer column because now there are 2 appropriations. तो पहले inner column में लिखो 3.68। अब next लिखेंगे proposed dividend. Proposed dividend कितना है? proposed dividend 3 lakhs। ठीक है, 3 मतलब 3 lakhs नहीं लिख के सिर्फ 3 लिखना है अपने को। तो आप लिखेंगे proposed dividend, inner column 3
3 मतलब 3.00। आपने सारी फिगर्स पॉइंट में दिखाई है ना, तो इसको भी दे दो 3.00। अब दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लेके आइए पहले। 3.68 प्लस 3 6.68 6.68 6.68 को ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि मुझे अप्रोप्रिएशंस माइनस करने होते हैं। 6.68 को 18.42 से माइनस कर दीजिए। 18.42 क्या था? 11.74 11.74 18.42 क्या था आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और जो अभी आपने आंसर दिया 11.74, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग्स। बैलेंस उसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं लिखते हैं, बोलने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स है। लिखेंगे क्या? बैलेंस कैरिड डाउन टू कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। या सिंपली लिखेंगे तो भी चलेगा, बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट, दैट्स इट। बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस शीट। ठीक है, समझ आया ये सम कैसे करना है? हाँ मैम। हाँ मैम। ओके, तो आज के लिए आई थिंक इट इज इनफ। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइनल अकाउंट्स वाले सम्स करेंगे, मतलब जिसमें बैलेंस शीट भी होगा, पीएनएल भी होगा, बैलेंस शीट के 12 शेड्यूल्स भी होंगे और पीएनएल के 4 शेड्यूल्स। मतलब टोटल हमने पहले बैलेंस शीट बनाना है मेन फॉर्मेट, फिर पीएनएल का मेन फॉर्मेट बनाना है, फिर 16 शेड्यूल्स बनाने हैं। 12 शेड्यूल्स किसके होते हैं? बैलेंस शीट के। और 13, 14, 15, 16 पीछे के 4 शेड्यूल्स किसके होते हैं? पीएनएल के। पीएनएल के। So all with 16 schedules. So another sum would be final accounts. And soon after completing our final accounts, we will finish our chapter also. Easy लग रहा है चैप्टर? वैसे इजी तो है ना? इजी Yes, लग रहा है ma'am. ना? हाँ, लेंदी है लेकिन इजी है। ठीक है, मैं होमवर्क दे दूं आपको सिर्फ, आप एक हाथ सम कर लेना। होमवर्क कर सकते हैं ये सम। देखो सारी हाँ, पॉइंट मैम। सेम हाँ, है। मैम। 1.20 होमवर्क ले लो। अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड फॉर 2005, ये सब पॉइंट सेम है और नीचे एडजस्टमेंट भी सेम है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टैक्स प्रोविजन, रीबेट्स, सब सेम है, सिर्फ फिगर्स अलग अलग है। तो 1.20 इज होमवर्क। ये हो गया आजाद बैंक वाला, आज हाँ ही हुआ मैम, होमवर्क हो का गया ना? ओके। हुआ है। इसकी अगर आपको एडजस्टमेंट्स नहीं आती हैं 1.26 की, तो वो मैं करवा दूंगी अगर नहीं आती हैं तो। अदरवाइज है वही प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड रिबेट्स, सब वही है। इंटरेस्ट ऑन ये ज्यादा आपको इंटरेस्ट ऑन 4000 में डाउट आएगा, वो मैं करवा दूंगी। बाकी पोस्टिंग्स और बाकी सब कुछ आप होमवर्क में कर सकते हैं। सो 1.26 आप होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है, ये सहवाग बैंक लिमिटेड, ये भी आप होमवर्क में ले सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ पीएनएल बनाने के लिए बोल रहे हैं, ओनली पीएनएल। 1.26, 1.27 होमवर्क, 1.28 होमवर्क। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे आज नहीं किया हमने, ट्रांसफर 20% ऑफ प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी 60,000 आरडीडी कहाँ दिखाते हैं ये हम? प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज। जहाँ Contingent जहाँ में। प्रोविजन फॉर टैक्सेस दिखाया ना आज, वहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाते हैं। ये बैड डेट्स नहीं है, ये आरडीडी इसमें मैम है। डायरेक्ट आएगा ना? हाँ, डायरेक्ट 60,000 इनर कॉलम प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज, आरडीडी है ये, आरडीडी। ये बैड डेट्स नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब आरडीडी, और बैड डेट्स मतलब बैड डेट्स, जो नुकसान हो गया वो बैड डेट्स। ये होने वाला नुकसान है। ठीक है, तो ये प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज में दिखाएंगे। और स्टैट्यूटरी रिजर्व तो आपको पता ही है। 1.27 होमवर्क है ना बेटा, बताया जो। 1.27 तो सिंपल है, पीएनएल बनाना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। मैम वो हाफिज Okay, सम है ना, ma'am. बाकी आप है क्या वो? हाँ उसके आगे 1.27, के पेज में तो कुछ नहीं है। एक मिनट रुको।
ओके, नहीं नहीं, ये फिर मत करो आप। 1.27 है ना, आधा है ये मत करो। 1.27 अभी के लिए छोड़ दो, बाद में हाँ देखेंगे। मैम। 1.28 होमवर्क ले लो आप। ओके, यहाँ पे भी सिर्फ पीएनएल बनाना है। देखिए 1.29 पीएनएल बनाना है। ये देखो जल्दी फटाफट। बैड डेट्स एडजस्टमेंट्स देख लो। आइटम्स तो तुमको आ ही जाएंगे। बैड डेट दिया हुआ है जो कि शेड्यूल नंबर 16 में जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये आपका प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में दिखाते हैं, जैसे आज किया। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, ये एडजस्टमेंट दी हुई है। मतलब एक इफेक्ट जाता है शेड्यूल नंबर 13 में से लेस होता है, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के शेड्यूल नंबर 5 पर। अभी हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं, तो अभी के लिए एक ही इफेक्ट दिखाएंगे रिबेट का। एंड 30%, अभी है ना 20 नहीं 30 बोला है। देखो, ट्रांसफर 30% ऑफ द प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स एंड 5% टू रेवेन्यू रिजर्व्स। अगर नहीं आएगा ना ये वाला पॉइंट तो मैं करवा दूंगी, आप लोग बाकी की सारी पोस्टिंग्स पूरी कर दीजिएगा। 1.29 की बात कर रही हूँ। ओके मैम। ये रिपीट क्यों हो रहा है? 1.29 यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है। 2 बार मैंने आपको पिक्स भेज दिए हैं इसमें। चलो कोई नहीं। और 1.30 हो गया है क्या होमवर्क? पीएनएल बनाना है ये भी। नहीं मैम नहीं। होमवर्क ले लीजिए, नहीं सिंपल हुआ। है, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। होमवर्क ले लीजिए 1.30। ओके, और ये क्या है? ये भी पीएनएल बनाना है, करेंसी बैंक लिमिटेड। होमवर्क ले लीजिए। सेम पॉइंट्स है, सेम। ये इररिकवरेबल एडवांसेस वर इररिकवरेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 4 lakhs, मतलब ये बैड डेट्स हैं। बैड डेट्स 4 lakhs। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में दिखाते हैं। ट्रांसफर 20% टू प्रॉफिट्स टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, एप्रोप्रिएशन से लेस करते हैं। रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, शेड्यूल नंबर 13 में से डिस्काउंट बिल डिस्काउंटेड में से लेस करते हैं। सब वही पॉइंट्स है, सेम सेम। 1.31 होमवर्क, ठीक है। हाँ 1.33 ये तो वो है स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाला। तो ये आपको होमवर्क करना है 1.33, ठीक है। 1.33 देखिए 1.41 प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। सारे आइटम्स दिए हुए हैं, और इन्फॉर्मेशन में क्या है? रिबेट्स जो कि शेड्यूल नंबर 13 में से लेस होता है। बैड डेट शेड्यूल नंबर 16 में दिखाते हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्स को हम प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में दिखाते हैं। कंटीजेंट। देखो सब वही पॉइंट्स है, सब सेम सेम। तो आपको क्या करनी है? सारे होमवर्क करके रखने हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको मंडे तक करके रखना है, ऐसा मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। आप लीजिए 5 to 6 days ले लीजिए, उसके बाद जो जो सम होता जाएगा आपका, हम डाउट्स भी क्लियर करते जाएंगे।